So if you are given a whole square to open, how we are going to open it? Like suppose it is a plus b whole square. How are we going to open it? A square plus b square plus 2ab, right? If it is given as a plus b whole cube, how are we going to open it? A cube plus b cube plus 3ab square plus 3a square b. What if it is given a plus b raised to 4? अब ज़्यादा से ज़्यादा क्या करोगे? Either you will go for a plus b into a plus b whole cube or a plus b whole square into a plus b whole square. Is there any other way? आप डायरेक्टली तो होल स्क्वायर को ओपन नहीं कर सकते, बट चलो स्टिल इट वाज लाइक कि हाँ भाई होल्स रेज टू 4 था. बट व्हाट इफ द पावर इज 5? व्हाट इफ द पावर इज 6? व्हाट इफ द पावर इज 7, 8, 9, 10? आप कैसे उसे ओपन करेंगे? सो टू योर रेस्क्यू कम्स अ थ्योरम, अ फॉर्मूला, बाइनोमियल थ्योरम. अब बाइनोमियल थ्योरम है क्या? एक्चुअली एक सिंपल सा फॉर्मूला है जिसके ऊपर पूरा का पूरा हमारा चैप्टर बेस करता है. फॉर्मूला क्या है आओ देखते हैं. इफ इट इज गिवन x plus y raised to n, this n could be anything, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, anything. How are we going to open it? nc0 x raised to n y raised to 0 plus nc1 x raised to n minus 1 y raised to 1. थोड़ा थोड़ा पैटर्न समझ में आ रहा होगा बिल्कुल. nc2 x raised to n minus 2 y raised to 2 means whatever is here will come here, whatever is here the subtraction will come here. nc3 x raised to n minus 3 y raised to 3, and ये जाएगा कहाँ तक? ये जाएगा तब तक till the time ncn x raised to 0 because n minus n is 0 and y raised to n. This is the entire formulation for x plus y raised to n. Is that much clear? अब इस पे एक क्वेश्चन करके देखते हैं so that we get a better clarity of the topic. Let us say a plus b raised to 7. Okay, a plus b raised to 7. How are we going to open it? 7c0 a raised to 7 b raised to 0 plus 7c1 a raised to 7 minus 1 b raised to 1 plus 7c2 a raised to 7 minus 2 b raised to 2 plus 7c3 a raised to 7 minus 3 b raised to 3 and so on. फटाफट चलते हैं. 7c4 a raised to 7 minus 4 b raised to 4 plus 7c5 a raised to 7 minus 5 b raised to 5 plus 7c6 a raised to 7 minus 6 b raised to 6 and lastly it will come 7c7 a raised to 0 and b raised to 7. या टोटल इसका कैलकुलेशन. अब इसे सॉल्व करते हैं. 7c0 will be written as 7 factorial upon 0 factorial into 7 minus 0 factorial and a raised to 7 plus 7c1 will be written as 7 factorial upon 1 factorial into 7 minus 1 factorial a raised to 7 minus 1 b raised to 1. इसको 7 minus 1 क्यों लिखे? अब तो हम इसे डायरेक्टली 6 लिख सकते हैं ना. नाउ नेक्स्ट वन इज 7 factorial upon 2 factorial 7 minus 2 factorial a raised to 5 b raised to how much? 2 plus 7 factorial 3 factorial 7 minus 3 factorial a raised to 4 b raised to 3 plus 7 factorial upon it will be 4 factorial into 7 minus 4 factorial into a raised to 5 not 5 a raised to 3 and b raised to 4 5 बार बार याद आ रहा है. अगले टर्म में चलो 5 ले ही लेते हैं. 7 factorial upon 5 factorial 7 minus 5 factorial, बड़ी जल्दी थी 5 को आने की भी भाई. a raised to 2 b raised to 5 plus
7 factorial upon 6 factorial, 7 minus 6 factorial into a raised to 1, b raised to 6, and last term will be 7 factorial upon 7 factorial into 7 minus 7 factorial, that will be a raised to 0, b raised to 7. This is what the next step for the calculation is. अब हमें सारे factorial solve करने हैं. Let us solve them. So ये 7 factorial और ये 7 minus 0 factorial will turn as the same. 0 factorial is always 1. Remember this. हम लोग पिछले चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं ये चीज़. So 1 into 7 factorial into a raised to 7 plus 7 into 6 factorial, नीचे आ जाएगा 1 into 7 into sorry not 7 into directly 6 factorial ही आ जाएगा. 7 minus 1 is 6 factorial. a raised to कितना है भाई 6, b raised to 1 प्लस 7 फैक्टोरियल का हो जाएगा 7 6 into 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 into 1 into 7 minus 2 is 5 factorial. a raised to 5 and b raised to 2. Next will be 7 into 6 into 5 into 4 factorial, नीचे आ जाएगा 3 into 2 into 1 into 4 factorial. Next will be what? 7 into भाई ए और बी तो लिखना भूल ही गए हम लोग. a raised to 4 and b raised to 3 plus 7 into 6 into 5 into 4 factorial, नीचे आ जाएगा डायरेक्टली 4 factorial into 3 into 2 into 1. इस वाले को हमने क्या किया, ये वाला जो था 7 minus 4 को हमने 3 factorial को split किया और 4 factorial का as it is लिख दिया. यहाँ पे आएगा क्या, a raised to 3 b raised to 4 plus next one will be 7 into 6 into 5 factorial, नीचे आ जाएगा simply 5 factorial into 2 into 1 क्योंकि 7 minus 5 is 2. next one उसके ऊपर आएगा a raised to 2 b raised to 5 plus it will give us 7 into 6 factorial upon 6 factorial into 1, a raised to 1 b raised to 6, and last term will be 7 factorial upon 7 factorial into 1, that is 0 factorial is 1, a raised to 0 b raised to 7. अब जो जो चीज़ें कैंसिल आउट हो सकती हैं हम उन्हें फटाफट कैंसिल कर देंगे. लाइक ये 7 factorial कैंसिल, यहाँ से 6 factorial कैंसिल, 5 4 4 again 5 again 6 again 7, राइट. सो हमारे पास अल्टीमेटली टर्म्स कौन कौन से बचे, आओ वो फटाफट एक बार टर्म्स देखते हैं. पहला क्या बचा, सीधा इसका तो 1 बचा, तो a raised to 7 प्लस ये बचा सिर्फ 7, तो 7b raised to 1 a raised to 6 प्लस 7 6 42, ये इससे कैंसिल आउट हुआ तो भाई इसकी भी कैंसिलेशन कर ही देते हैं. ये हुआ तो 3. अब यहाँ पे और भी कैलकुलेशंस हो रही हैं. 3 2 6 3 2 6, ठीक है, एंड हेयर अगेन 2 और 3. बस यही कैलकुलेशंस थी. अब इन्हें फटाफट लिखते हैं. सो इट विल बी 7 3s are 21, so it will be 21 a raised to 5 b raised to 2 plus this will be 7 5s are 35, so 35 a raised to 4 b raised to 3 and plus 7 into 5, that is again 35 a raised to 3 b raised to 4 plus the next one is 7 3s are 21 b raised to 5 and a raised to 2 plus 7ab raised to 6 and lastly it will be b raised to 7, right. So this is your final answer, this one is your final answer for a plus b raised to 7. अब इतनी बड़ी कैलकुलेशन आपको लग रहा होगा कि इतना लंबा हम लोगों ने सॉल्व किया और उसके बाद जाके हमें इतना सा आंसर मिला, इससे अच्छा तो हम डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन करके कर लेते. तो डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन करके करते तो इससे 4 गुना ज़्यादा टाइम लगता और आंसर आने के चांसेस काफ़ी कम थे, बिकॉज देयर वाज अ हाई चांस ऑफ गेटिंग मिक्सड अप विद द थिंग्स व्हाइल सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, राइट. और ये तो चलो फिर भी हमने a प्लस बी रेस टू सिर्फ 7 लिया है. क्वेश्चन अगर आपको 8 9 या 10 पे लेके चला जाएगा तब क्या करोगे,
एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वी हैव जस्ट दिस फॉर्मूला एज आवर सेवियर। तो भाई इसको प्रणाम करो और इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करो, ठीक है। व्हाट इफ इट इज a माइनस बी रेज टू 7, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ इतना रखना है दैट a प्लस इंटू माइनस बी रेज टू 7। तो जहां जहां b है वहां माइनस b हो जाएगा, और पावर अगर ऑड है तो वो माइनस साइन साथ में आएगा, पावर अगर इवन है तो b की साइन जो है वो पॉजिटिव रहेगी। क्लियर? एक काम करते हैं, इस पे भी हम लोग एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। ओके, लेट्स गो फॉर अनदर क्वेश्चन। क्वेश्चन लेते हैं हम लोग x प्लस 1 रेज टू 4। प्लस वाला तो हमने अभी अभी किया था, लेट अस टेक इट एस x माइनस 1 रेज टू 4, ठीक है। और इसको सॉल्व करेंगे किससे? बाइनोमियल से। तो चलो 4c0 x रेज टू 4 1 रेज टू 0, टू बी प्रिसाइज माइनस 1 रेज टू 0। नेक्स्ट 4c1 x रेज टू 3 एंड माइनस 1 रेज टू 1। माइनस 1 रेज टू 1 तो माइनस 1 होने वाला है। ना 4c2 x रेज टू 2 माइनस 1 रेज टू 2 प्लस 4c3 x रेज टू 3 माइनस 1 रेज टू no x रेज टू 1 माइनस 1 रेज टू 3, एंड लास्टली वी हैव 4c4 दैट इज x रेज टू 0 एंड माइनस 1 रेज टू 4। तो इनका कैलकुलेशन करते हैं बहुत जल्दी। 4 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 4 माइनस 0 फैक्टोरियल इंटू एक्स रेज टू 4, माइनस 1 का तो कुछ होने वाला है नहीं बिकॉज इसकी पावर है 0। अगला क्वेश्चन, अगला पार्ट आ जाएगा 4 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ एक्स रेज टू 3 इंटू माइनस 1 प्लस 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। इट विल बी एक्स स्क्वायर इंटू 1, माइनस 1 का स्क्वायर 1। Next will be 4 factorial upon 3 factorial into 1 factorial x into minus 1, क्योंकि माइनस 1 का क्यूब हो जाएगा माइनस 1। एंड आवर लास्ट टर्म विल बी 4c4, उसको लिखने की क्या ज़रूरत है, 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल। 4 माइनस 4 इज 0 फैक्टोरियल, डायरेक्टली लिख लेते हैं। एंड विल बी एक्स रेज टू 0 हो जाएगा 1 इंटू माइनस 1 का हो जाएगा 1, माइनस 1 रेज टू 4 इज 1। अब जहाँ जहाँ कैंसलेशंस हो रही हैं वहाँ पहले कैलकुलेशंस करके कैंसलेशन कर देते हैं। 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू एक्स रेज टू 4 प्लस 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 1 इंटू 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब, और ये टर्म डायरेक्टली माइनस में लिख ही लेते हैं, प्लस 4 फैक्टोरियल को स्प्लिट कर लेते हैं 4 इंटू 3 इंटू 2 में, अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1 एक्स रेज टू 2 माइनस, अगला वाला टर्म आएगा माइनस। इट विल बी 4 फैक्टोरियल को स्प्लिट करते हैं 4 इंटू 3 फैक्टोरियल में, और 3 फैक्टोरियल इंटू 1 एक्स, एंड लास्ट टर्म विल बी 4 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 1, ठीक है। अब यहाँ कैलकुलेशंस करते हैं, क्या कैंसिल हो रहा है, 4 फैक्टोरियल गया, 3 फैक्टोरियल गया, 2 फैक्टोरियल गया, और 2 से ये भी कैंसिल हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या आया, 1 2 3 4 5, ये 3 3 चला गया, ये 4 फैक्टोरियल भी चला गया। वेरी गुड। सो व्हाट वी आर लेफ्ट विथ एक्स रेज टू 4 माइनस 4x क्यूब प्लस 2 into 3 that is 6x square minus 4x plus 1. So this is what x minus 1 raised to 4 will give you as the answer. Right? Simple है ना? बहुत आसान हो गया क्वेश्चन। सी 4 वाला तो कितना इजी था, कितना छोटा सा था। 7 वाले में थोड़ा सा लेंदी था, 8 वाले में थोड़ा सा और लेंदी हो जाएगा। एंड नंबर ऑफ टर्म्स हम कैसे देखेंगे, सी जितने यहाँ पे है पावर उससे एक ज़्यादा ही निकलने वाला है। जैसे 4 थे तो 1 2 3 4 5 टर्म्स आए, अगर ये पावर 6 होती तो अराउंड 7 टर्म्स आते, 7 थी तो हमारे पास नियरली 8 टर्म्स थे। सो क्योंकि हम 0 से शुरू करते हैं और एंड तक जा रहे हैं इसलिए एक टर्म एक्स्ट्रा आता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार करके देखते हैं, अगर हमारे पास थोड़ी और वैरायटी हो तो हाउ वी गोइंग टू सॉल्व इट, राइट।
थोड़ा सा क्वेश्चन को ट्रिकी करके देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन लेके देखते हैं, x माइनस 1/x रेज टू पावर 5। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना। चलो इसे सॉल्व करते हैं। व्हाट इट विल गिव अस, 5c0 x रेज टू 5, 1/x, वो भी माइनस का, बेचारे के ऊपर पावर 0। चलो 5c1 x रेज टू 4 माइनस 1/x रेज टू 1। नेक्स्ट 5c2 x रेज टू 3 minus 1/x raised to 2. Next 5c3 x raised to 2 minus 1/x raised to 3 plus 5c4 x raised to 1 minus 1/x raised to 4, and lastly it will be 5c5 x raised to 0 minus 1/x raised to 5. What it will give us, it will be 5c0 को कैसे लिखेंगे, 5 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल x रेज टू 5, सिंपल। अगला टर्म माइनस में आने वाला है क्योंकि माइनस 1/x की पावर है 1, एंड इट विल गिव अस 5 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, दैट इज 5 माइनस 1 इंटू x रेज टू 4 इंटू 1/x। माइनस की साइन ऑलरेडी यहाँ पे आ चुकी है। नेक्स्ट इज 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, x की पावर है 3 और माइनस 1/x की पावर 2 को हो जाएगा माइनस 1/x स्क्वायर, प्लस क्यों माइनस, क्योंकि पावर 3 है। सो इट विल बी 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 3 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू x स्क्वायर इंटू 1/x क्यूब। नेक्स्ट पोर्शन आएगा इसका 5 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। ओके, x की पावर है 1 और माइनस 1/x की पावर है 4, तो ये हो जाएगा माइनस की साइन हटके 1/x रेज टू 4। एंड लास्टली वी हैव व्हाट वी हैव दिस वन, सो माइनस 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल, x की पावर है 0 तो वो तो 1 हो गया, माइनस 1/x रेज टू 5। चलो इन्हें फटाफट कैंसिल आउट करते हैं, जितनी चीज़ें कैंसिल हो सकती हैं इसमें, पर पहले लिख लेते हैं। जो चीज़ डायरेक्टली कैंसिल हो रही है उसे डायरेक्टली कैंसिल कर लो, ये तो डायरेक्टली गए, ये भी डायरेक्टली गए। यहाँ पे कुछ पावर रिड्यूस होंगी, 1 1 3 and this will stay as 5 only. Now और क्या कैलकुलेशंस हो सकती हैं, x रेज टू 5 यहाँ पे बचा और ये आएगा कितना, 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल x क्यूब प्लस 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 इंटू 1 इंटू 3 फैक्टोरियल 1/x, और नॉट 1/x, x की पावर ऊपर थी तो x, माइनस 5 4 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल को सीधे सीधे 2 इंटू 1 लिख लो और हो जाएगा 1/x प्लस 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 1 इंटू 1/x क्यूब माइनस हो जाएगा सीधे सीधे माइनस 1/x रेज टू 5, क्योंकि 5 फैक्टोरियल हम लोग ऊपर नीचे ऑलरेडी काट चुके हैं। अब यहाँ कटिंग कर लेते हैं हम लोग, क्या क्या कट हो रहा है, 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, और उसके अलावा कहाँ कहाँ कैंसलेशंस हो रही हैं, 2 2 2। ओके, सो नाउ वी विल रीच टू आवर फाइनल आंसर। इट विल बी x रेज टू 5 माइनस 5x रेज टू 3 plus 5x, not 5, that is 10x minus 10/x plus 5/x cube and minus 1/x raised to 5.
So this is what the final answer for x minus 1 by x raised to 5 will give us. Okay, 1 2 3 4 5 6 टर्म्स हैं 6, पावर थी 5, एक ऐड होके आ गया. Is that clear? So this is what all about binomial theorem is. And हमारी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 8.1, वो कुछ इसी तरह के क्वेश्चंस के साथ भरी हुई है, राइट? सो आप लोग सॉल्व करिए एक्सरसाइज 8.1 और हम मिलते हैं अगले वीडियो में.